Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, as you know that we are continuing the UI automation descriptors in Studio module, and today we are going to be learning that how we can use the image selection region in UiPath. Let's get started. Okay. So to do that, let's quickly jump to the UiPath Academy, and यहाँ पे हमारे पास image targeting method आ गया है. Let's see. We can use the image targeting method by enabling the image selection region. This feature helps us identify a UI element when other methods like selectors and furry selectors aren't available, and it relies solely on the image recognition. So guys, generally हम इस method को वहाँ use करेंगे जहाँ पे हमारे strict selectors और furry selectors काम नहीं आ रहे, और we are using a VM or a virtual machine to identify our specific UI element, right? There is a video also, and यहाँ पे let's quickly move to the UiPath Academy, sorry UiPath Studio, and यहाँ पे हम लोग अपना new process बना लेते हैं. I'm gonna say chapter 48. Okay, I'm gonna say image targeting method temp. Let's quickly create that thing, create the process. Okay, so to do that, we have the double UI application जैसे हमें UiPath Academy ने बना रखा है. Imagine that this is inside a VM. I don't have a VM installed here in my system right now. So if it is inside a VM, we can't use the strict selectors or the furry selectors. We have to only rely on the image targeting selection method. So to do that, let's get started. Let's quickly use use application and use browser activity over here, right? इसको हम यहाँ से दे देंगे, right? This is the arguments over there, sorry, this is the application path over there, right? And inside of this path, what I have to do, I have to type it inside of a cache or honest check or not honest check fields. Type into so let's quickly use this part as well. Guys, यहाँ पे जैसे ही आप इसमें जाएंगे in the selection options window, you're going to be seeing a region over here called the image region selection, right? It enables the selection of a freeform area that will be searched using its image, right? So यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे and we're going to be turning off the CV over here. तो यहाँ पे मैं एक प्लस साइन आ जाएगा. तो फर्स्ट वी विल बी इंडिकेटिंग ऑन द टारगेट. ठीक है, ये मेरा टारगेट हो गया है. एंड एंकर के लिए भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका इमेज सिलेक्शन रीजन. So then I'll be indicating my anchor like this. So we have indicated the target and the anchor pair or the specific descriptor, because the descriptor is also called as target anchor pair through the image selection region. And quickly let's confirm it. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास target में भी image आ रहा है. It was the first to identify correctly, right? एंड एंकर पे भी हमारे पास यहाँ पे इमेज आ रहा है. गाइस किसी यहाँ पे एंकर कैश इमेज उसने लिया है, टारगेट उसने ये पार्ट इमेज लिया. इमेज एक्यूरेसी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स क्विकली लेट्स डू वन थिंग. ओके, लेट्स मेक ए ट्विस्ट है. इसके बदले ना हम ये करते हैं. लेट्स क्विकली डू लाइक दिस. ओ सॉरी, लेट्स डू लाइक दिस पार्ट. Yeah, this is the target, and to enable the anchor we will do us check. Okay, us check हमारे यहाँ पे एंकर. अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे us check क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है. ठीक है, us check यहाँ पे 2 बार आ रहा है. तो हम लोग एक और इसको यहाँ पे देंगे अपने us check को. we are going to be using on as well. Let's see, it's not taking that as well. Let's quickly delete it and let's say this part. हाँ, ऑन अस चेक. ठीक है, यहाँ इस टारगेट के लिए ये 2 एंकर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज, अगर मैं इस की एक्यूरेसी बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तब भी ये काम. सॉरी, दिस इज द टारगेट, राइट? उप्स, माय बैड. वी नीड द एक्यूरेसी फॉर द एंकर, राइट? हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था. तो यहाँ पे क्या होने वाला है ना, कि हम लोग
जो हमारा एंकर है उसकी हमने एक्यूरेसी बढ़ा दी कि वाई मैंने ये पार्ट लिया कैश इन नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे अस चेक 2 बार लिखा, आप देख सकते हैं दैट इज नॉट ऑन अस चेक बट अस चेक यहाँ पे है। सो इट इज कंफ्यूज दैट अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो वो 2 ले रहा है, ऑब्वियसली उसको लग रहा है कि ये डिस्क्रिप्टर मेरा यहाँ पे भी अवेलेबल है, राइट। सो आई मीन्स इमेज टारगेटिंग मेथड। सो इफ आई विल इंक्रीज द एक्यूरेसी, यहाँ पे स्वीट स्पॉट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि इट फाउंड अ डुप्लीकेट पार्ट, दिस मेथड रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स एंड फेल्ड टू करेक्टली आइडेंटिफाई द टारगेट, ठीक है। एंड यहाँ मैं अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 9.3 थिंक सो, वैलिडेट, 9.3 नो, 9.4 नो, 9.5 ओके। हाँ, तो जैसे ही मैं 95% एक्यूरेट रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट इज फाउंडिंग दिस अस चेक वाला जो बॉक्स है, जस्ट प्रेस कंफर्म टू कंफर्म इट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है एंड यहाँ पे आई कैन टाइप एनी डिजिट ओवर है, लाइक मैंने 100 टाइप कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्लोज नेवर ओपन नेवर, क्योंकि वो पहले से ओपन है, I'll be clicking over here in the debug part and let's see. ठीक है, तो it typed 100 over there. So guys, ऐसे आप image targeting method use करके you guys can run your automations inside a virtual machines or inside a RDP, that is the remote desktop protocol, ठीक है। ये है एंड गाइज इस वीडियो के लिए इतना मैं कहूँगा नहीं है क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाएगा, इस पे ज़्यादा कुछ था नहीं। क्विकली जंप टू योर पाथ एकेडमी, एज इन्होंने भी यही बता रखा है, ठीक है। मैंने बस शॉर्ट में बताया आपको, ईजी स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड मैच द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द सिलेक्शन विंडो। सो इमेज सिलेक्शन का तो अभी मैंने देखा था F3, पॉज का होता है F2, जो बचा है वो है आपका होवरेबल। तो आप ऐसे कर सकते हैं, पॉज का आई थिंक सबको पता है, यहाँ पे F2 होता है। इमेज का मैंने अभी देखा था, होवरेबल का ट्रस्ट भी मुझे नहीं पता था, बट वहाँ पे एक और ऑप्शन नहीं था, इट वॉज इन माई फेवर, तो यहाँ पे मैंने F6 उसको कर दिया, सब वी आर राइट, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। इसको हम मर्ज कर रहे हैं इन द प्रैक्टिस पार्ट, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है हमारे पे, 7 मिनट्स ही हुए हैं हमें खाली, so we're gonna be practicing it as well. Okay, now practice fix my workflow. A workflow received from a colleague isn't working as intended and needs to be fixed using the concepts and features discussed in the course. Download the workflow for the हमने पहले से कर लिया है। The provided workflow needs to be fixed and to perform the following task. पहले हम workflow देख लेते हैं वो वाला, ठीक है। Open a local project, downloads, and लेट्स सी दैट यहाँ पे इन्होंने हमें क्या प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सर्च फॉर द मूवी द आइस एज ऑन द IMDb वेबसाइट, रिट्रीव द IMDb रेटिंग फॉर द ऑफ द मूवी, डिस्प्ले द IMDb रेटिंग थ्रू अ मैसेज बॉक्स। ओके, ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। हमें RPA चैलेंज खोलना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें मूवी सर्च पे जाना पड़ेगा, Ice Age, finding the Ice Age as well, get the popular movies. Oh, we have the popular movie section as well, ये हम देख भी सकते हैं। Okay, we can't see it, but you know हम इसको Netflix पे ट्राई कर सकते देखने की, it is searching some popular movies for us, so yeah, Godzilla X the King Kong. Plus you'll be using some API to fetch the data from the server, and also yeah, it's pretty dope, I guess. New movies, nice. Okay, yet to be installed. हम लोग आंसर नहीं देख रहे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट यू हैव टू डाउनलोड द वर्कफ्लो फॉर डीबगिंग, इसी पे हमें ठीक करना। अब इन्होंने जिस तरह से बनाया हुआ है, लेट्स सी देन हाउ वी कैन रेक्टिफाई द पैकेज ओवर है, ठीक है। ओके, इट्स बीइंग इंस्टॉल्ड एंड दे हैव यूज्ड द मॉडर्न डिजाइन। ओके, नॉट बिग वर्कफ्लो आई गेस, एक ही है इनके पास मेन। ओके, so they have used use application browser to
open the IMDb. We were at the wrong site. imdb.com. Oh, okay. Just 1 second. Yeah, imdb.com. ठीक है, यहाँ पे मैं अपने लर्निंग पाथ दोबारा से ओपन कर लेता हूँ बिकॉज मैंने गलती से उस पार्ट में खोल दिया, इस टैब में खोल दिया। ठीक है, ये है, ये ओपन होगी हमारी साइट। लेट्स क्विकली गाइज, टू बी वेरी फ्रैंक, जब भी आप कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो तो एक बार उसको मैनुअल करके देखो कि आपको क्या क्या आपको लगता है उसमें ऑटोमेशन की जरूरत है, नहीं है। हाउ यू गैस कैन इम्प्रूव योर ऑटोमेशन बाय डूइंग द मैनुअल प्रोसेस। एक बार आपको मैनुअल प्रोसेस खुद करके देखना ही पड़ेगा, यहाँ गया वहाँ गया, जो भी है आपको देख, जो भी आपका कंट्रोल जहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सर्च फॉर द मूवी द आइस एज ऑन द IMDb वेबसाइट। ओके, क्लिक ऑन द सर्च आइकन। ठीक है, ओपन द मूवी कार्ड। ओके, हमें आइस एज मूवी को ही सर्च कराना है, तो क्लिक ऑन द, इट इज क्लिक ऑन द सर्च आइकन। ओके, आई हैव टू क्लिक ऑन द सर्च आइकन। ठीक है, एंड देन व्हाट, ओपन द मूवी कार्ड। आई थिंक आई हैव टू टाइप मूवी ओवर देयर। यहाँ पे हम मूवी टाइप इन्होंने नहीं की है, तो आई गेस दैट या the first part will be I have to type in over here. Well, let's see. Type into not the classic one, we're using the modern one. So yeah, application could not be identified. imdb.com, IMDb to open here. 1 second. Indicating edge. Okay, they are using edge now. We can change it. Okay, we can use it in Google. हम गूगल कर रहे हैं तो हम गूगल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, I can use it like this, and oh, for the anchor, can click on IMDb. Let's see. Okay, यहाँ हमें क्या टाइप करवाना है? I have to type the ice age. Let's quickly copy it, minus the spaces. Oops. Okay, so let's see the ice age. Click ice age. Click get the movie rating and okay. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आई गेस इनके कार्ड्स में। This indicated element does not belong to the target application window. Okay, no issues. I have to click over here like this. Open the movie card. Okay. The ice age search. ठीक है, कौन सा हमें लेना है? one with the elephant, this one. Okay, and I have to select its rating as well. हम यहाँ पे अटके हैं, open the movie card. Okay, just 1 second. Open the movie card. It be here I guess. यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। Anchor can be anchor is no, I don't want anchor to be sorry, target to be image. Target will be this and the anchor will be this part. Okay, confirm. Get the movie rating. What is this? Okay, get the movie rating. Okay, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है, so I need to be getting the movie rating. Movie rating is 7.5. Enter. Okay, let's quickly guys try to run it. Close never, and इसको मैं can quickly see, देखते हैं यहाँ पे। Oh, okay. Oh, तो इट इज़ वर्किंग फाइन गाइज। यहाँ पे 7.5 भी इन्होंने हमें दे दिया है। सो search for the movie the ice age of the IMDb website, retrieve the IMDb rating of the movie and display the IMDb rating through a message box. So we have fixed
my colleagues workflow over here. It was pretty damn easy. ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है. We don't want to see the steps. Okay, I can go for the practice 2. Fine tuning the descriptor. Use the workflow from the previous practice exercise solution. Fix my workflow. Okay. To include the new requirements, implement a user input prompt to capture the movie title from the user. Use the movie title as an input. मतलब हमें एक input dialog box यहाँ पे डालना है to capture the input from the user. Okay. Use the movie title as input to search for the movie on the movie search page. Okay, extract. Okay, I think इस पे यहाँ पे हमें खाली we have to insert a input dialog activity, and I can say title will be movie search, and can say please enter the movie you want to or see at search. Cool. And यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं str because it's type of string. str I can say movie name. अब जो यहाँ पे जाएगा मेरा it will be of a type variable str movie name, and मैं उसी को क्लिक करूंगा जो मेरा str movie name. अब मुझे देखना है कि हाँ, now one more thing guys, अब यहाँ पे क्या होगा, मूवी नेम मैंने डाल दिया, मैंने क्लिक पे भी क्लिक कर दिया है हॉरग्लास पे, बट अब यहाँ पे क्या, अब जैसे मुझे मैंने यहाँ पे डाला फॉर एग्जाम्पल आई सर्च्ड just one second, yeah, I searched Avengers for example, clicked over here, so the Avengers is there. ठीक है, द मैं डाल देता हूँ. ओ दे आर सर्चिंग विद द okay, enter, or I can press a click this as well because they have used click, so it's a good practice to use click only. तो द एवेंजर्स भी है द ये, तो लेट्स क्विकली सी दैट ये है एवेंजर्स, यहाँ हमने क्लिक किया है, इसकी मुझे रेटिंग चाहिए. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा मूवी नेम है वही मेरे डिस्क्रिप्टर के टारगेट के अंदर आना चाहिए इनसाइड द यू नो द सेलेक्टर. सो लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट. क्लिक हमने कर दिया, ओपन मूवी कार्ड. नाउ लेट्स क्विकली सर्च इट ओवर हियर. या जैसे हमारे पास ये मूवी है द एवेंजर्स, एंड आई कैन गो विद एन इमेज एज वेल. ठीक है, तो ए नेम आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास एंकर में आ गया ए नेम. काफ़ी चीज़ें एंकर में आ चुकी हैं. यहाँ पे टारगेट द एवेंजर्स है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दैट स्पेसिफिक वेरिएबल ओवर देयर. ठीक है, हम वहाँ पे वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं, दैट इज द str मूवी नेम. कंफर्म, यस. ठीक है, इनर टेक्स्ट हमारा str मूवी नेम हो जाएगा. एंड जो मेरा एंकर है, लेट्स सी एंकर को हम लोग कितना नेम 24 वैल्यूज. ओके, तो द एवेंजर्स, no, we are not gonna be taking the image as a target because image यहाँ पे target में it can be an issue. Element is not visible on the screen. Okay. Image यहाँ इसको नहीं मिल रहा है एंकर पे, so what we can do, we can we do like this that we are not using the image over there, कि हम एंकर ही यूज नहीं करें. लेट्स सी, देखते हैं. वेरी करेक्शन इज इनवैलिड. ओके, द एवेंजर्स इज देयर. ठीक है, स्टिक सेलेक्टर भी आ गया अपने पे, फजी सेलेक्टर भी आ चुका है, एंड यहाँ पे str अंडरस्कोर मूवी नेम ये आ गया है. लेट्स सी ऑटो रिपेयर. ओके, तो इसने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट वन सेकेंड गाइस. string dot strict and fuzzy as well. ठीक है, तो we will be using inner text a name is this, check inner text is this. We don't have anything regarding the movie name, I guess. Let me quickly zoom it for you guys. No. Okay, and in the strict selector,
फाइन IMDb हाईलाइट। ओके, नहीं पर हमें स्ट्रिक्ट यूज नहीं करना पड़ेगा ना, वी हैव जस्ट हैव टू यूज अ फजी सेलेक्टर ओनली, सेव एंड let's quickly see that how we can use this automation over here. देखते हैं, let's see, debug. So it's opening it now. I can say the ice age. Okay, ice age, clicked on search. अब उसको मूवी कार्ड नहीं मिल रहा है, यस, बिकॉज हमने यहाँ पे द डाला हुआ है, सो इट्स नॉट एबल टू फाइंड इट. पहले मैं इसका टाइम आउट रिमूव करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. टाइम आउट कैन बी ऑफ 2 seconds, सो या सो गाइज आई थिंक यहाँ तक आपका समझ में आया है कि यहाँ तक हमने क्या किया हुआ है. इस पे हमने यहाँ इनपुट डायलॉग यूज किया है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, right, and then we have used a use application browser, typing into the home page, clicking on the search button, and यहाँ पे जब हम ओपन करने आते हैं आपका मूवी कार्ड पे, तो गाइज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है देखा जाए तो, बट यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑन द एलिमेंट जो भी आपका नाम है मूवी का वहाँ पे. एंड आप यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आप यहाँ पे जो आपका एंकर है, दैट यू कैन गिव टाइटल्स ऑल्सो, टाइटल्स को दे सकते हो, एग्जैक्ट मैचेस को दे सकते हो. हम यहाँ टाइटल को दे सकते हैं, टाइटल को हमने एंकर दे दिया है. ठीक है, वन मोर थिंग, जब यहाँ पे आप टारगेट दोगे तो अब जो आपका टारगेट है दैट्स गोना बी अ डायनेमिक टारगेट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो टू मेक इट अ डायनेमिक एज वेल. ठीक है, यह इग्नोर कर देगा अंदर के टेक्स्ट को, एंड लेट्स रन द वर्क फ्लो. अब हमने यहाँ पे आईसेज डाला है, लेट्स क्विकली सी दिस, एंड लेट्स से आई लाइक द फॉल आउट सीरीज. किसने किसने फॉल आउट सीरीज गेम खेला है एंड फॉल आउट सीरीज देखी है, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल. लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट. यस, इट इज रनिंग. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अब इसको एज अ डायनेमिक टेक्स्ट से यूज़ कर लिया है. ठीक है, हम लोग उसको वेरिएबल से भी यूज़ कर सकते हैं, जो ये हमसे चाहते हैं करवाना यूआईपाथ वाले, तो वी कैन यूज़ ए वेरिएबल ओवर देयर एज वेल. जस्ट गो विद फॉल आउट, राइट, कुछ भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, एडिट द टारगेट. एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इनर टेक्स्ट, सॉरी, I can use again, I can have to indicate the targets and anchor of the descriptor pair title. एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ए नेम और एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम में फॉल आउट आ गया है. मैंने यहाँ पे शिफ्ट और लेफ्ट की को प्रेस किया है, देन आई प्रेस राइट क्लिक ओवर देयर, यूज वेरिएबल मूवी नेम, यहाँ पे हम कर देंगे फॉल आउट. गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस पार्ट, ओवरराइड द डिफॉल्ट वैल्यू. when enabled the variable default value will be overridden with the provided value. मतलब जो भी आपकी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो उस टाइम पे, रन टाइम पे ओवरराइड हो जाएगी आपकी जो प्रोवाइडेड वैल्यू होगी उस टाइम पे. तो वी हैव टू क्लिक इट एज वेल ओवर हियर. ठीक है, ठीक है कि इसको एक और वेरिएबल मिला है, आपका एक और वैल्यू मिली है अदर मेथड्स में एज वेल. स्ट्रिंग फॉल आउट वॉज फाउंड इन द टारगेट फॉर दी सेलेक्टेड, डू यू वांट to replace all the instances with the variable str underscore movie name. yes, हम यहाँ पे भी इसको मूवी नेम डाल देंगे. एंड हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंड लेट्स प्रेस कंफर्म, बिकॉज हम यहाँ पे इमेज टारगेटिंग मेथड की भी हेल्प ले रहे हैं. इट विल ऑल्सो बी रिप्लेस एट द रन टाइम एज वेल. मैं आपको दिखाई तो एक बार और, हमने यहाँ पे कहीं स्ट्रिक्ट सेलेक्टर नहीं लिया हुआ है. ठीक है, एंकर पे हमने जस्ट यहाँ पे टाइटल्स को लिया हुआ, दैट इज स्टैटिक. कंफर्म, एंड अब हम यहाँ पे डालते हैं आपका, let's go with the Avengers. Let's see if it runs or not. Avengers. I think it clicked. Oh, it clicked, and here we have our rating as well. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको डायनेमिक टारगेट टेक्स्ट टारगेट मेथड से भी करके दिखा दिया है, हमने आपको वेरिएबल मेथड से भी करके दिखा दिया है. सो गाइज यहाँ पे जो यूआईपाथ एकेडमी का जो आपका सॉल्यूशन है, अगर आप उसको देखेंगे तो दे हैव डन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक टेक्स्ट टारगेट, एंड वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल एज वेल. ठीक है,
So guys, in the next video, this practice is complete. In the next video, we will be doing 10 questions on important questions on descriptors in Studio, right? So guys, this was it for this informative video, guys. And if you like the session, please don't forget to like, share and subscribe my channel as well. It helps me a lot. Please support me, guys, as you are supporting me till now. Thank you so much for being here. And as always, if you like the stream, then keep learning.